पेन तो खोलो तो दादा ने उनको कहा कि पहले तो आपको यह समझना है कि ईश्वर या ईश्वर की कोई भी स्वरूप आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे। आपको ऐसे लग रहा है कि सारे दरवाजे बंद हो गए लेकिन एक दरवाजा स्ट्रॉन्गर। So he explained to him so beautifully about how whatever the divine does for you, it is for your benefit. आपकी ग्रोथ, आपकी उन्नति के लिए है। तो सारे ग्रह, सारे दैविक स्वरूप ये Yoga's Chitta Vritti Nirodha. This shloka from Patanjali Yoga Sutra simply translates as Yoga is the cessation of the fluctuation in our mind, to go deep within. Yoga takes us to the present moment, the only place where life exists. Yoga is the union of mind, body, and soul. Namaste, everyone. I, Chetna Raya Huja, felicitator of Fulkari's Holistic Wellness Group, welcome you all to an evening full of yoga, peace, and harmony. I wish you all a very happy International Yoga Day. This year's theme for the International Yoga Day is ether. In case you're wondering why, let me tell you. Ether, as you all may know, is one of the 5 elements which include fire, earth, air, water, and ether. Referred to as Akasha in Sanskrit, ether or space is the element that I truly hope, my Fulkari ladies, you enjoy today's specially curated session, and I wish you all a very happy International Yoga Day once again. Over to you. Because this is a platform where all of you who are doing something or the other in your way, for the city, for the society, I'm just very glad to meet you all. So when I was speaking to Seema ji and Sheetal ji about what we should do for this yoga day, we thought that let us not do the typical yoga in the sense of it and actually come down to the true and the real word, which is actually yoga, right? And when we were discussing with Sheetal ji also, she said people are asking questions, do we need to bring a yoga mat? That's the notion that we have, कि yoga matlab physical postures, asan yahi hai. But actually yoga is the union of body, mind and soul. हमारे से क्या हुआ है ना, हम लोग वो बॉडी पार्ट पे ही अटक गए हैं, माइंड एंड सोल तक पहुंचे ही नहीं है, विच इज ट्रू बिकॉज द प्रेपरेशन ऑफ द फिजिकल बॉडी ऑल्सो टेक्स अ लॉन्ग वाइल. और अगर आपको मेंटली अपनी स्टेबिलिटी में जाना है, आपको सोल वाइज स्पिरिचुअली अपने साधनाज में डीप जाना है, आपको समाधि तक पहुंचना है, तो ये फिजिकल बॉडी बिना बैक रेस्ट के बैठ पाए घंटों घंटों, उसके लिए डेफिनेटली वो योग आसन लगते हैं, लोग मानते हैं. ये जब थॉट आता है ना, इट्स जस्ट your body telling you, your mind, your mental body is giving a direction to your physical body that somewhere you're getting depleted. I want from anybody. So just be honest to yourself and don't be in the thought that this one's here, that one's here, she will judge if I feel like that, if I nod my head also people are watching. Please be honest to yourself, because everybody is experiencing this. We may or may not be vocal about it, but trust me, everybody goes through this. ठीक है, इतना there is the physical body, there is the mental body. अभी एक और चीज बहुत अच्छी है समझने के लिए, which I want you all to understand. Whatever illnesses
that we experience at the physical level. Illness, discomfort. कोई ऐसा है जिसको अपनी लाइफ में कभी कोई इलनेस नहीं हुई है, कोई बीमारी नहीं हुई है, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ है बॉडी में? If you are, very nice, please you can raise your hand. We all would look up to you. But physical body में कुछ भी discomfort, illness कुछ भी आ रहा है ना, it is a sign from your mental body that there is something off. My husband's a doctor. He is a neuroradiologist with Hinduja Hospital in Mumbai. So we both study, while he's a doctor, we study and research on spirituality together completely from the scientific perspective. So please know that whatever I am speaking, it is validated scientifically. सुनोगे ही females में. क्यों? What is this telling you at a physical level? Stress. And then the thyroid issue comes up. This is absolutely the truth. Ladies के साथ maximum क्या होता है? Not being able to share whatever is going on. बहन को क्या बताऊं, मम्मी को क्या बताऊं, मम्मी को खुद का अपने उनकी खत्म होगी तो मैं बताऊं, या मैं उनको क्यों अपनी चिंताएं एक्स्ट्रा दूं? हाँ ठीक है, मैं तो कर ही रही हूँ ना, ये मेरा काम है ये सब कुछ करना, सो आई विल जस्ट गो थ्रू इट. हम लोग ऐसे करके कितना कुछ निकाल देते हैं ना अपनी लाइफ में. वी जस्ट मेक इट पास एंड दबता रहता है, दबता रहता है, दबता रहता है. कहाँ पे जा रहा है ये सब? मैं शीतल सोहल, फुलकारी वुमेन ऑफ अमृतसर की प्रेसिडेंट हूँ. आज का जो इवेंट था योगा डे के लिए था. आज इंटरनेशनल योगा डे है और हर साल हम कोशिश करते हैं कि आज का दिन हम सेलिब्रेट करें. हालांकि आजकल योग कोई नहीं बोलता, योगा ही बोलते हैं. और योगा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से योग वेस्ट में गया और सब में वेस्टर्न कंट्रीज में सब लोग इसको योगा बोलते हैं. और ये बड़ी खराब बात है कि जब वहाँ फेमस हो गया तो हमारे इंडिया में वापस फेमस हो गया है अब योगा. तो लेकिन आज का इवेंट इसलिए डिफरेंट है कि जब हम योगा के बारे में सोचते हैं, योग के बारे में सोचते हैं, हम सिर्फ आसन के बारे में सोचते हैं कि हेड स्टैंड करना है या कौन सा आसन करना है, शवासन, शीर्षासन. लेकिन हम लोगों को बताना चाह रहे थे और एक्सपीरियंस करवाना चाह रहे थे कि योग सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक और सोल की भी जर्नी है. और आज हम सब ने वो एक्सपीरियंस किया, शायद आपने भी, कि कितना शांत और हमारे अंदर ही वो शांति है जो हम बाहर ढूंढते हैं. तो आज वही एक कोशिश थी कि सबको ये एक्सपीरियंस करवाने की. इतनी चहल पहल, नॉइज, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, उसमें हम लोगों ने 15-20 मिनट बिना पूरा मुझे लगता है 4 बजे या 4:30 बजे से हमने फ़ोन को ही नहीं देखा है. ये ही सबसे बड़ी बात आज के डेट में हमने अचीव की है आज इंटरनेशनल योगा डे के लिए. तो ये था आज का इवेंट. आज के मुख्य मेहमान कौन थे और तो मैत्री बोध एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन. और आज की जो हमारी स्पीकर थी मैत्री नूर, उन्होंने ही हमें बहुत चीज़ें बताई. ये नहीं था कि हम ये पहले सुन नहीं चुके हैं या कई हैं हमारे में से जो हम सब ये चीज़ें जानते हैं, लेकिन उन्होंने ये बातें फिर से हमारे सामने लाई. और जो हम अलग अलग तरीके से इस सच को जानते हैं, हमें अच्छा भी लगा सुन के कि चलो मैं सही दिशा. मेरे लिए तो पर्सनली ये था कि जो वो बोल रही थी मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ. मैं मैत्री बोध परिवार से नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये बताया, एक अंदर से इतना अच्छा लगा कि मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ. और ये अमृतसर से हैं मैम, और वापस अमृतसर काफ़ी लेडीज़ ऑडियंस में से उनको जानती भी हैं. और हमारा कोलैबोरेशन पहले ब्रह्म कुमारीज़ के साथ भी हुआ है, ईशा फाउंडेशन से भी हुआ है. तो इस साल हमारा कोलैबोरेशन इनके साथ था. शहरवासियों को क्या मैसेज देना चाहिए? शहरवासियों को यही मैसेज देना चाहती हूँ जो आज हमें मिला है, कि सिर्फ बाहरी हिस्से को जो हम देखते हैं उसको ज़रूरी नहीं है. अपने अंदर का जो भगवान है उसको जगाना, उसके साथ कनेक्टेड रहना कितना ज़रूरी है. तब जाके मुझे लगता है
आजकल जो हम देख रहे हैं न्यूज़ देखो तो ऐसे लगता है कि बंद करें। अगर हम उस अंदर के भगवान के साथ हम कनेक्ट हो जाएं तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक हमारा ये जो धरती है हमारी, हम सब मिलजुल के पीसफुली रह सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ये सब मेरा नाम है मैत्रेयी नूर। मैं एक सेवक हूँ मैत्री बोध परिवार से, और हमने आज जो किया वो एक्चुअली नॉर्मली योगा का कहते हैं ना कि ये आसन करेंगे, ये योगा मैट लेकर आइएगा, हम लोग ऐसे करेंगे। तो योग जो असल में है ना, वो है यूनियन ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। क्या हुआ है ना, आज योग को पूरा का पूरा हमने कन्फाइन कर दिया है सिर्फ बॉडीली प्रैक्टिसेस पे, सिर्फ आसन्स पे, सिर्फ पोस्चर्स तक उसको हमने सीमित कर दिया है, जबकि वो तो सिर्फ एक पहला कदम है। हमें माइंड तक पहुंचना है, पहले माइंड को शांत करना है, फिर हमें सोल को इवॉल्व करने में हेल्प करना है, और फिर इन तीनों का जो मिलन है ना, असल में तो वो योग है। तो हमने आज उसके बारे में बात की और उसके लिए एक पहला कदम दिया। आपने स्वयं प्रेम के बारे में भी कुछ बताया, उसके बारे में कुछ? स्वयं प्रेम तो जब आप अपने इनर डिवाइन को एक्सपीरियंस करते हैं, जब आप अपने खुद के जो भीतर आपके जो दैविकता है, जब आप अपने सत्य स्वरूप को अनुभव करते हैं, उनके साथ जब आपको प्रेम होता है, तो आप खुद ही अपने आप इतने पवित्र, इतने पावन होते जाते हैं कि आपको अपने आप से प्रेम होता है, और फिर आप सभी में वो उस दैविकता को, उस ईश्वर को देखते हैं, और आपको सभी में प्रेम हो जाता है, सभी से प्रेम होता है, क्योंकि हर जन आप भी हैं, वो भी हैं, एक ही हो जाता है सब। वास्तव में योग है क्या मैम? योग वास्तव में है यूनियन ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। जब आप ईश्वर के साथ हर समय चलते, उठते, बैठते, गाड़ी चलाते, खाना बनाते, नहाते हुए आप ईश्वर के साथ एक हैं, जिसमें कि आप और उनके बीच में कोई अंतर नहीं है। आप उनसे हर समय बातचीत कर सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि जब मैं मैट निकाल के आसन करने बैठूंगी या जब मैं ध्यान में बैठूंगी तभी नहीं, क्योंकि ईश्वर ने हमें जैसा बनाया है, हम तो उनके अंश है ना। हमारे और उनके बीच में जो ये अंतर आ गया है ना, उस अंतर को जो खत्म करने वाला काम है ना, वो है योग का असली महत्व। और हमारे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? यस प्लीज। आपके शहर में, अमृतसर शहर में मैत्री बोध परिवार है, मैत्री बोध परिवार के सेवक्स हैं। आप प्लीज़ हमसे रीच आउट कीजिए। अगर आपको फ्री में मेडिटेशन सीखना है, फ्री में हीलिंग है, आपके कोई भी रोग हो, दुख दर्द आपके जीवन में चल रहा हो, आपके रिश्तों में आनाकानी है, बच्चों में प्रॉब्लम है, घर में प्रॉब्लम है, प्लीज़ आप हमसे जुड़िए मैत्री बोध परिवार से, और मैत्री बोध परिवार के सेवक आपकी पूरी हेल्प करेंगे। हमारे संस्थापक हैं मैत्रेय दादा श्री जी, जो कि अपने आप एक डॉक्टर रह चुके हैं, और फिर वह ये आध्यात्मिकता को आगे लेकर आए हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये सिर्फ एस्ट्रल फूफा नहीं है, पर ये एक्चुअली साइंटिफिकली प्रूवन स्पिरिचुअलिटी है। अमृतसर में कहाँ पे है मैम रखी ये जो मैत्री बोध है? ये यहाँ पे अमृतसर में बहुत सारे सेंटर्स हैं। हम आपको नंबर देंगे जो कि आप नीचे स्क्रीन में फ्लैश कर सकते हैं, ताकि लोग उनके साथ बहुत इजीली जुड़ सकें। धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच।